continue with the discussion about some other textures that include the inequigranular textures. The subject is spectrography, and I am Dr. Harun. So today, the continuation of our textures, and this category actually involves 7 type of textures that include serrate, porphyritic, glamro-porphyritic, fucoioclitic, ophitic, subophitic, and interstitial. Interstratal or intergranular, you can also call it. Normally, sometimes some crystals, they can have more than one of these textures. And depending on your one of these textures, as you guys have seen, that serrate means there will be a continuous range of sizes for one crystal. Okay, serrate is inequigranular, and it will show you that there will be crystals. इसमें ऐसे होगा कि एक ही मिनरल के जो crystals हैं वो आपको various sizes में मिलेंगे. Okay, यहाँ पर आपको एक thin section नजर आ रहा है, that is the PPL view, and इसमें mainly plagioclase है, augite है, और small proportions में magnetite है. अब अगर आप इसमें देखें तो आपको बहुत से क्रिस्टल्स जो लैच शेप क्रिस्टल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्रिस्टल्स की ग्रोथ जो है, दैट इज बेसिकली दी प्लेजियोक्लेस. यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको प्लेजियोक्लेस क्रिस्टल्स जो हैं, ये जो वाइट क्रिस्टल्स हैं विद ब्लैक बैंड, you can see them of various sizes, and if you start from here, you can see them throughout the crystal. I think somebody forgot to turn off their mic. Okay, so you can see in this section that there are various crystals that are of different sizes, and that is actually the serrate texture, that same mineral that exhibits various sizes starting from the small to the big. And I think it has already been written that the crystal sizes range from 0.01 to 0.5 millimeter. The next texture that is very common in igneous rock, and we have seen it many times, is the porphyritic texture. Porphyritic texture, what is it? It is basically the large crystals are embedded in a fine grain matrix, and here you can see beautiful large crystals with some zoning and with some development of some rim, and here as well you can see that, and actually this thin section is have a long name. We can call it augite, olivine, lucite, ferric, melitite. Okay, in this thin section, if you see the bigger crystals, the big crystals, especially the larger one, we call them the phenocryst. Okay, and the smaller ones, the background, we call them as ground mass. Okay, normally the melitite mineral is confined to the ground mass, while augite, olivine, and lucite, they are basically
phenocrysts. Now, if you see the bigger crystals here, that he says augite, grayish green, and green in PPL is present in 3 generations in this sample. You see these grayish green samples, these are actually the augite mineral. Then comes the lucite, occurs as colorless, equate euhedral microphenocrysts, most easily identified by their low birefringence in XPL picture. And the olivine is framed gray euhedral columnar microphenocrysts. यहाँ पे अगर आप देखें तो you can see that these are the in which you have the birefringence colors, especially the you see that some of these crystals, especially this one and this one, you can see that there is zoning also present in augite, and you can also see some intergrowth of crystal in this sample. And according to him, the malachite is normally confined to the background. This is a complicated type of thin section in which you have more than one type of mineral, and you can also see a complicated type of zoning on some of the augite crystals. Okay, then comes the glamurophoretic texture. Glamurophoretic texture is nothing else than you will see that if you consider this as a whole thin section, and in this thin section you have few crystals that are clustered. तो आपको thin section में कुछ ऐसे areas नजर आएंगे जहां पर जो crystals हैं वो clustered या branched नजर आए. जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, in this area if you see, so you will see small clusters of crystals that are coarse grained as compared to the matrix. We call it as glamurophoretic texture. In this thin section is actually from a tholeiitic basalt, and it shows crystal clots. Normally clot is actually we also use this term when we have blood and it creates some structure or a body. Similarly, here you can see that some of the crystals, they have combined to form a structure, and we call this structure as a okay. Okay, you cannot see the screen. Okay, let me share it again. Okay, I hope you can see the screen now. Okay. Normally in this thin section, we have the crystal growths of feldspars, of augite, and of olivine, and the crystal size is relatively smaller because this is basalt, and basalt, you know, it forms on the surface of earth. And then we have the glamurophoretic hawaiite. Hawaii is actually the island in the Pacific Ocean. Here you can see as well some of the clots coming in, and similarly here you can see that some of मैंने कहा आपके लिए काफी असाइनमेंट के बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी. Okay, no problem. We can talk. Yes, Aisha, you want to ask something? Hello. No sir, बस screen नजर ही नहीं आ रही थी. Oh, okay.
तो अगर आप लोग असाइनमेंट पे बात करना चाहते हैं तो हम यहीं पे कर लेते हैं, बिकॉज इफ यू डोंट नीड द स्क्रीन। मुदस्सिर जी सर, ये जो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने एक लिखा था फोनेटिक टेक्सचर के बारे में। तो इसकी सर एग्जांपल आ गई है गैब्रो, ग्रेनाइट एंड डायोराइट की, इसकी एग्जांपल हैं। अब हम ठीक सर है। उधर से एग्जांपल इसकी सिर्फ ये एग्जांपल 3 लिख के कोई तीनों में से कोई एक डायग्राम लगा दें, ये अनफ है ना? डायग्राम मींस फोटोग्राफ उसकी। जी सर, उसकी फोटोग्राफ उसकी लगा दें, इमेज उसकी। हाँ, तो उसको थोड़ा बता देना कि ये सर क्या ये होता है, साथ कि लिखनी। मेन मिनरल्स कौन से होते हैं उसके अंदर। जो भी रॉक आप लिखेंगे उसके साथ थोड़ा सा बता दें ब्रीफली, जैसे एक लाइन होती है ना, वो लिखते हैं उसके साथ कि इसके अंदर क्वार्ट्ज है, जी फेल्डस्पार है, ओलिवीन है, क्या इसकी कंपोजिशन होती है। ठीक है। सर, मिनरल की कंपोजिशन बीच में लिख दें। रॉक की कंपोजिशन, क्योंकि रॉक तो मिनरल से बनती है ना। जी सर, मतलब लिखते हैं कौन कौन से मिनरल हैं इसमें। हाँ, ये लिखते हैं आप उसमें, बिल्कुल। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? सर आपने यस, इंस्ट्रक्शन में दिया। वन बाय वन करें ना, हैंड रेस कर दें तो मैं नाम पुकारूंगा तो फिर आप आते जाएं। ओके, एहसान पूछें। सर आपने इंस्ट्रक्शन में कि लाइन स्पेसिंग 2.0, तो लाइन स्पेसिंग 2.0 पैराग्राफ बहुत एक्सपेंड हो जाता है। दोबारा बोलें एहसान। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए ना आपने असाइनमेंट के लिए, हाँ तो हाँ, उसमें आपने लिखा कि लाइन स्पेसिंग में हो ना जो असाइनमेंट के लिए वो 2.0 हो। ठीक है, हालांकि डिफॉल्ट 1.0 होती है। तो ठीक जब है। हम 2.0 करते हैं तो बहुत एक्सपेंड हो जाते हैं सर असाइनमेंट। मतलब पहले अगर 15 पेजेस में आ रहा था तो वो 30 में चला गया है सर। हाँ तो नो प्रॉब्लम, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, जाने दें उसको। सही। अच्छा है, आपकी असाइनमेंट बड़ी लगेगी, लगेगा बंदे ने ज्यादा काम किया हुआ है। सर यस अली, अली ऑलवेज हैव अ सर एक क्वेश्चन। और बात पूछनी है। ओके यस, आई थिंक अली से पहले हम पूछ लें फिर आपकी बारी सर जी जो आती है। यस अली। सर जी यस। सर जी शेप ऑफ क्रिस्टल है सर, हाँ इसकी हाँ, 3 टाइप्स है ना, यू हेड्रल, सब हेड्रल और एन हेड्रल। क्या सर जी हमने सिर्फ ये लिखनी है या इनकी भी ना आगे भी एक्सप्लेनेशन करनी है, जो ना 3 डायमेंशन वगैरह भी, या यहाँ तक बस कर दे लिख के? शेप ऑफ क्रिस्टल की बात कर रहे हैं आप? जी सर, मतलब इसकी 3 टाइप्स है ना, यू हेड्रल, सब हेड्रल और एन हेड्रल। वेट अ मिनट, हाँ देख लेने दें एक दफा बुक में दोबारा कंफर्मेशन के लिए। कल भी आई थिंक किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, क्रिस्टल शेप्स की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, तो सर। इसमें यू हिड्रल है, सब हिड्रल है, एन हिड्रल है। तो उसमें आप लिखेंगे ना कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टर्म्स, जिस तरह बुक में लिखा हुआ है इसी को आप अपने वर्ड्स में लिख दें और थोड़ा सा उसको बता दें कि इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जैसे टेबल बनाया हुआ है इसी तरह का टेबल बना दें, ठीक है। यस सर, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, बाकी मैं आपको इसका वो भेज दूंगा, इमेज भेज दूंगा। ये पेज नंबर है, लिख जी लें सर आप, ये पेज नंबर लिख लो, 18 है, 18 है पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर 18। हाँ पेज जी नंबर सर, अब याद 18। हो गया। चलो सही हो गया, बेहतर। इसके अलावा जी? थैंक यू सर। यू आर वेलकम अली। ओके नाउ वी हैव आयशा। यस सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके जो 3 सेक्शन हमने करने हैं, तो उसके बाद जो नीचे उसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज को टेबल में बना के सिर्फ लिखने के, हमने डिटेल से लिखना है कि हमने ऐसे ऐसे किया जिस तरह आप हमें असाइनमेंट में देते थे, वैसे डिटेल से लिखना है कि सिर्फ उसकी नहीं, प्रॉपर्टीज ही हम लिख उसमें सकते तो हैं? जस्ट आप एक दफा बता देंगे ना कि आपने पॉइंट काउंटिंग कैसे की है। जैसे आपने एक असाइनमेंट में लिखा था तो वहीं से आप उठाएं, सारा वो पॉइंट्स उठाएं और उसको लिख दें, अगर आपके पास वो लिखे हुए पड़े हैं पॉइंट्स। अगर आपने वो मीन जब पर वो सब असाइनमेंट, लिखना है? हाँ तो आप वो स्टेप्स बता दें कि हमने पॉइंट काउंटिंग, जहाँ पर पॉइंट काउंटिंग का टॉपिक है ना लिखा हुआ उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में,
वहां पर आप बता दें और अगले क्वेश्चन में जस्ट आप बता दें, उसकी परसेंटेज लगा दें। अगर उसकी परसेंटेज पूछी हुई है, पाई चार्ट है, तो जस्ट आप पाई चार्ट लगा दें, लेकिन आप उसको बता Okay, दें कि thank you. आपने कैसे बनाया है ना स्टेप्स। लाइक अगर कोई बंदा ऐसा है, आपका जूनियर आपके असाइनमेंट पढ़ता है और वो पॉइंट काउंटिंग करना चाहता है और उसको माइक्रोविजन का नहीं पता, तो आप उसको थोड़ा गाइड कर दें कि फर्स्ट क्लिक ऑन दी फाइल बटन, देन फाइल बटन, डू दिस, डू दैट, जर्नल डिस्क्रिप्शन में जाके पॉइंट काउंटिंग को सिलेक्ट करना है, फिर स्टार्ट करना है, पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो जस्ट ब्रीफली, कोई लंबी नॉवल लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेरी ब्रीफली। ओके Okay, sir. Thank you. Yes. Any other questions? Yes, we have Sir, ये जो Asim Zaman Khan Khatak. Yes. Asim. सर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 सर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाना खुद करें, मतलब बनाएंगे या मतलब इसका किस चीज पिक्चर का जो है ना वो structure? स्लाइड्स में डायरेक्ट पुट, मतलब जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है क्या लिखा हुआ है उसमें? पढ़ेंगे आप? क्या? मेरे पास इस वक्त वो कॉपी नहीं है आपकी असाइनमेंट की। आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर का? नहीं सर, मतलब उसके साथ जो मतलब डायग्राम्स होते हैं ना, मतलब पॉइंट काउंटिंग है, इसके साथ मतलब हम डिटेल लिखेंगे और इस तरह बाकी उसमें जो देखिए ना, सब है ना, पॉइंट मतलब काउंटिंग है ना, उसको जैसे पॉइंट काउंटिंग की, जैसे आप अगर जेएस माइक्रोविजन पे कर रहे हैं तो आप उसमें स्क्रीन्स भी लगा सकते हैं, जो आपकी प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है लैपटॉप पे, और जैसे स्क्रीनशॉट नहीं लेते आप, तो आप स्क्रीनशॉट्स यस भी सर। लगा सकते हैं कि फर्स्ट वी क्लिक ऑन हाँ दिस, तो क्या आया उसमें, अगला डायलॉग बॉक्स क्या आया, तो 3-4 आप उसकी स्क्रीनशॉट्स भी लगा सकते हैं अपनी असाइनमेंट की लेंथ को बढ़ाने के लिए। लाइक 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट्स लगा दें, साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे जी, फर्स्ट वी क्लिक ऑन दिस एंड देन दिस थिंग हैपेंड एंड देन दिस केम इन एंड देन दिस दैट केम इन। बात समझ रहे हैं? ओके सर, हाँ, ओके, थैंक यू वेलकम। यस, सर अगर हमने सारा बुक से लिया हो डाटा तो उसका रेफरेंस एक ही देंगे लास्ट में? हाँ सर क्योंकि सारी अपनी अपनी वर्डिंग में लिखा है, बुक से ही देख के लिखा, और जो वीडियोस हाँ, आपने इसमें सेंड की इसमें हैं ये वो है, उससे देख इसमें के। ये जरूर है कि आप लोग थोड़ा इंटरनेट को एक्सप्लोर करें, थोड़ा नेट पे देखें कि इसके अलावा और क्या मटेरियल मौजूद है, क्योंकि मैकेंजी के अलावा कुछ और लोगों ने भी टेक्सचर्स पे काम किया हुआ है ना, इग्नियस रॉक्स के। तो अगर आपको 2-3 रेफरेंस और मिलते हैं तो उससे थोड़ी आपकी काम जो है वो सॉलिड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ओके सर। हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के लोग, कोई थर्ड पर्सन डजंट से दैट के यू जस्ट यूज्ड वन बुक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंसेस आप 2-3 रेफरेंसेस और भी ऐड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, वी हैव खतीजा। यस, सर जो हमारे मेरे जो थिन सेक्शन थे उसमें वो सारे ना ग्लासी हैं, तो लाइक उस ग्रेनुलर साइज नहीं है। कोई तो मसला वो नहीं, मुझे आप लिख दें ग्लासी। जो भी आपके थिन सेक्शंस हैं, यही तो एक्सरसाइज है कि आपको पता हो कि आपका जो थिन सेक्शन है उसमें फेनेरेटिक क्रिस्टल्स हैं, उसमें अफेनेटिक है, वो ग्लासी है, वो विट्रिक है, वो क्या है। तो यही तो एक्सरसाइज है कि यू गो बैक टू योर क्लासेस, यू गो बैक टू योर बुक, you explore the internet and you just try to see different type of textures and different type of materials. That is basically the idea of this exercise. तो सर जो उसमें क्रिस्टल्स टाइप स्ट्रक्चर है, मींस जो हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन दी है वहाँ पे क्लोर्स लिखे हुए हैं, तो क्लोर्स और क्रिस्टल एक चीज तो नहीं होगी? दोबारा बोलें। हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है थिन सेक्शन के साथ, तो उसमें हाँ, क्लोर्स लिखा हुआ है, इस चीज के क्लोर्स हैं, तो क्लोर्स और क्रिस्टल एक चीज तो नहीं होगी हमारे पास? नहीं, क्लॉट्स और क्रिस्टल एक चीज नहीं होती। क्लॉट्स बेसिकली ग्रोथ होती है और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कई दफा क्लॉट्स जो हैं वो क्रिस्टल से मिलकर बनते हैं, कुछ जो क्लॉट्स होते हैं वो अमार्फस होते हैं। आप मुझे बताएंगे थिन सेक्शन का नंबर क्या है, जिस थिन सेक्शन की आप बात कर रहे हैं? कैन यू प्लीज टेल मी द नंबर? जैसे हर मेरे वाले में तो सारे एक जैसे
नो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसका जो फिगर है, जो फोटोग्राफ है, जैसे किसी के आगे 19 लिखा होता है, किसी पे 20 लिखा होता है, तो उसको मैं बुक में से देखकर अभी आपको बता देता हूँ, अगर आपको याद है कि क्या नंबर है उसका। क्योंकि जब मैंने आपको कॉपी करके दिया था ना, तो डिस्क्रिप्शन प्लस फोटोग्राफ थी ना, तो उसमें दोनों चीजें थी। तो डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में हमेशा वहां पर एक नंबर लिखा होता है जो रेफरेंस है हर सीन सेक्शन का, और यूनिक सर होता है। 21 21, ओके गुड, लेट सर अस गो टू 21 21। तो 21 जो है दैट इज बेसिकली प्लेजियोक्लेस, ओगाइट, मैग्नेटाइट, वेट्रोफाइट। अच्छा, इसमें ग्लासी होगा, phenocryst of 3 minerals, plagioclase, ogaite and magnetite, some of them in clots. ओके, सही है। तो इसमें क्रिस्टल्स तो हैं, ये देखे ना, फिनोक्रिस्ट, जब वो फिनोक्रिस्ट कह रहा है इट मींस देयर आर क्रिस्टल्स। हाँ, ग्राउंड मास में क्रिस्टल्स नहीं है, लेकिन ये जो आपको नजर आ रहे हैं टॉप व्यू में और सेंटर के बिल्कुल नीचे, सो दीज आर एक्चुअली द क्रिस्टल्स जो आपको लाइट कलर में नजर आ रहे हैं, और जो डार्क येलो है वो आपकी सारी ग्राउंड मास है। तो आप इसको देखिए तो इसमें ये क्रिस्टल्स ही हैं बड़े। जो लाइट कलर में है, लाइट येलो, दीज आर क्रिस्टल्स, एंड डार्क येलो इज द ग्राउंड मास जो आपका ग्लास है। ओके सर एक और चीज, तो जब हम पॉइंट काउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारे पास पॉइंट क्रिस्टल के फ्रैक्चर्स के ऊपर आता है तो हम उसको क्रिस्टल वाला नाम ही देंगे। क्रिस्टल के फ्रैक्चर के ऊपर आता है, हाँ, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग इट वेरी डिटेल्ड, वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर एन एक्सरसाइज। आई थिंक इट इज ओके, यू कैन जस्ट काउंट इट एज अ क्रिस्टल। तो सर क्रिस्टल और इंक्लूजन्स का पता नहीं चलता कौन सी वो फ्रैक्चर है, कौन से इंक्लूजन्स है। इंक्लूजन बेसिकली उसमें आपको किसी मिनरल की आप ये कह सकते हैं कुछ थिकनेस नजर आती है। जो फ्रैक्चर होता है नॉर्मली उसके अंदर वो एम्प्टी होता है, उसके अंदर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर इंक्लूजन होगी तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई मटेरियल किसी ना किसी कलर में नजर आएगा, कोई ना कोई मिनरल नजर आएगा। जैसे कल हमने एक पायरोक्सिन का इंक्लूजन देखी थी ओलिविन क्रिस्टल्स में, तो वो एक लाइन के अलोंग होगा और उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। इंक्लूजन मींस एक फ्रैक्चर के अलोंग होता, वो भी फ्रैक्चर ही है, लेकिन उसमें कोई ना कोई मिनरल जो है वो ग्रो कर जाती है। दैट्स व्हाई इट हैज सम थिकनेस एंड इट आल्सो हैव सम कलर। ओके सर, थैंक यू। Okay, welcome. Yes, we have any other confusions? Okay, let me check how many people were present. Okay, good. Okay, then if you don't have any other questions, then I will leave you guys, and we see each other tomorrow.